Hello students, today I Priya Rohira welcome you all in my next lecture that is based on chapter 1 Python Pandas, and in this lecture I am going to explain you how to delete and rename rows and columns of a data frame and how can we create a data frame using boolean indexes and how can we access rows from a data frame with the help of boolean indexes. So just let's start with the topic. First, how to delete columns. To delete columns, we can use del statement and drop function. These are two things using that we can delete a columns of a data frame. Syntax of del. अगर आपको del statement से कॉलम डिलीट करना है किसी भी डेटा फ्रेम का तो आप मेंशन करेंगे del df object that means data frame name and you will specify here column name that you want to delete. We can delete only single column with del statement. Deleting single column with del statement. आप del statement को यूज करके किसी भी डेटा फ्रेम से एट अ टाइम सिर्फ एक ही कॉलम को डिलीट कर सकते हैं. हाउ? Suppose this is my data frame and I have written del df4 is the name of my data frame and Hindi. That means I want to delete a column named Hindi. मुझे ये हिंदी column delete करना है. And you can see the output here only English column is there, Hindi column is deleted. So with the del statement we can delete only single column at a time. Now deleting single or multiple columns. There is another method using drop function. If you want to use drop function then you will use data frame object dot drop and here you will specify your single column or group of columns. Access 1 denotes that you want to delete column. It is mandatory, you have to mention it, otherwise it will generate an error. So we can take single column if we want to delete one column. यहाँ पे आप एक कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल कॉलम्स देना है. इट्स योर चॉइस, आप सिंगल कॉलम का भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सपोज दिस इज माय डेटा फ्रेम. I have written df4.drop Hindi and science. That means I want to delete Hindi and science. And in output you can see that Hindi and science columns are deleted. So it's your choice whether you want to use del statement to delete single column or you can use drop function to delete one or more than one column at a time. Now deleting single or multiple rows. We can use drop function to delete rows. Del statement will not be used to delete rows. आप rows को delete करने में del statement को use नहीं कर सकते थे जैसा कि आपने column को use करने में किया था. आपको rows के केस में drop function ही use करना पड़ेगा. How? Suppose this is my data frame and I have written df4.drop Priya. Here Priya is the label or index of my data frame. So I want to delete this row which is having name as Priya and x is 0. Here writing x is 0 is optional. It is by default. अगर आप यहाँ पे x is 0 नहीं भी लिखते हैं तो वो इसका डिफॉल्ट फीचर है, पर x is 1 के केस में जैसे मैंने आपको कॉलम के केस में बताया था वो कंपलसरी है. तो आपने नोटिस किया इस आउटपुट में प्रिया नेम रो इज डिलीटेड. Another example, df4.drop. Here you had used two rows, Priya and Deepa. That means आप at a time multiple rows भी delete कर सकते हैं. Deleting single और multiple rows using index value. अभी तक हमने जो रो डिलीट किया था वो रो लेबल्स को यूज़ करके किया था, पर अगर आपको उनकी इंडेक्स पोजीशन को यूज़ करना है then how to do this? Here this is my data frame, df4.drop df.index. आपको पता है हमने इंडेक्स एट्रीब्यूट आपको एक्सप्लेन किया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने आपको सारे एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन किए थे. इफ़ यू वांट टू सी दैट लेक्चर तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा. तो यहाँ आपको पता है कि इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, उस डेटा फ्रेम की इंडेक्स को फैच करता है. और यहाँ पे अगर मैं पोजीशन दे दूँ दैट मीन्स ज़ीरोथ इंडेक्स पे रो है Priya. So it will delete the row Priya and your output will show only Deepa's and Rahul's row. So you can see that Priya name row is deleted.
एग्जाम्पल 2, अगर आपको रेंज पे रोज डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे इंडेक्स एट्रीब्यूट के साथ रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन यू कैन सी इन द आउटपुट 0th and 1, आपको पता है लास्ट इंडेक्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो 0th and 1, तो प्रिया एंड दीपा वाली रो डिलीट हो गई, ओनली राहुल रोज विल रिमेन एग्जिस्ट। सो प्रिया एंड दीपा नेम रोज आर डिलीटेड. So I hope that it's clear to you how can we use row labels to delete rows and how can we use index position to delete rows. My next topic is how to rename rows or columns of a data frame. Suppose this is my data frame and I want to rename this ENG, that is English, SCI, that is Science, and I want to rename this label, row label Priya. अगर आपकी कोई भी कॉलम हेडिंग है या रो लेबल्स हैं, आप उनको रीनेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश की जगह कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे प्रिया की जगह कुछ और होना चाहिए, देन यू कैन यूज द रीनेम फंक्शन. हाउ? df4.rename. अगर आपको कॉलम्स रीनेम करने हैं तो आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे कॉलम्स इक्वल कर्ली ब्रेसेस में आप यूज करेंगे ओल्ड कॉलम नेम, दैट इज इंग्लिश, colon and new name. I want to use full name English and in place of SCI I want to show science. तो जो भी old name है colon new name. और इसी तरह से जैसे आपको इंडेक्स को रीनेम करना है तो इंडेक्स इक्वल कर्ली ब्रेसेस में प्रिया, दैट इज माय ओल्ड लेबल, एंड राखी, दैट इज माय न्यू लेबल. एंड हियर आई हैड पुट इन प्लेस ट्रू. इसका एक लॉजिक होता है कि हमने इसकी इन प्लेस की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स. अगर आप इन प्लेस को फॉल्स ही रहने देते हैं और ट्रू नहीं करते हैं देन इट विल क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम. आप ये जो चेंजेस कर रहे हो रीनेम के, ये आपको इस डेटा फ्रेम पे शो नहीं होंगे. सो यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखा कि इंग्लिश, साइंस और प्रिया की जगह आपको राखी नेम शो हो रहा है. मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है. इफ इन प्लेस इक्वल फॉल्स इट विल क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम. चेंजेस विल नॉट शोन इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम. तो आपको अगर इसी डेटा फ्रेम में चेंजेस शो करने हैं तो आपको इन प्लेस की वैल्यू ट्रू करनी पड़ेगी. ये एग्जाम में आ सकता है कि अगर इन प्लेस ट्रू होगा तो क्या आउटपुट आएगा और अगर इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स है तो क्या आउटपुट आएगा. ओके, नाउ creating data frame with boolean indexes. Boolean indexes can be created using true or false as index values or it can be created using 1 or 0. क्योंकि आपको पता है कि boolean values या तो true या false के फॉर्मेट में होती है या 1 0 के फॉर्म में. See here I have created a data frame जिसमें मैंने days और classes करके दो लिस्ट ली हैं और एक डिक्शनरी क्रिएट करी और इस डिक्शनरी की हेल्प से मैंने ये pd.dataframe dict1 को मैंने यहाँ पास किया. अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इंडेक्स में मैंने ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिए. मेक श्योर दैट ट्रू का T और फॉल्स का F कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. तो आप जो इंडेक्स बना रहे हो वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के थ्रू ही बना रहे हो. यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने ट्रू लिखा है वहाँ पे ट्रू फॉल्स. तो आप यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में देख सकते हैं लाइक मंडे को 6 क्लासेस, ट्यूसडे को कोई क्लास नहीं, वेडनेसडे को 3 क्लासेस, थर्सडे को कोई क्लास नहीं 0, फ्राइडे को 8 क्लासेस. तो ट्रू. मतलब जब आप बूलियन इंडेक्सेस के थ्रू डेटा फ्रेम बनाते हो तो जब आप इसको एक्सेस करते हो तो इट विल गिव्स द हेल्प टू यू. सी द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विथ बूलियन इंडेक्सेस. अब वही सेम टॉपिक है, यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स की जगह 1 0 1 0 1 भी लिया है. तो आपने नोटिस किया जहाँ पे ट्रू था वहाँ 1 है और जहाँ 0 है वहाँ फॉल्स है. तो इट्स योर चॉइस कि आप 1 0 1 0 मेंशन करते हो या ट्रू फॉल्स मेंशन करते हो. बोथ द मेथड्स आर करेक्ट. My next topic, how to access rows from data frame with boolean indexes. To filter rows or records from data frame lock attribute will be used. आपको पता है कि हम जब डेटा फ्रेम से रोज को एक्सेस करते हैं तो लॉक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं.
अब यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाई जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो यू हैव मेंशन हियर df.log1 और df.log0. तो जिसकी वैल्यू 1 होगी वो रिकॉर्ड्स आपको 1 के केस में दिखेंगे और जिसकी वैल्यू 0 होगी वो आपको 0 के केस में दिखेंगे. अगर आपने यहाँ पे अगर इंडेक्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ले रखा है तो आप यहाँ पे 1 की जगह ट्रू लिखेंगे और 0 की जगह फॉल्स लिखेंगे. ऐसा मत करना कि यहाँ तो 1 0 1 ले रहे हो और यहाँ पे आप कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो ट्रू और फॉल्स. अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर. अगर आप बूलियन इंडेक्सेस 1 0 के फॉर्म में ले रहे हो तो आप एक्सेस भी 1 या 0 को यूज़ करके ही करोगे. अगर आप इंडेक्सेस ट्रू और फॉल्स कीवर्ड को यूज़ करके कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको ट्रू या फॉल्स ही मेंशन करना पड़ेगा. Still students, if you are having any doubt or any confusion regarding this lecture or any doubt in your IP subjects, तो mention your doubts in comment section. Thank you students.